Good. So let's start. Today we will start our session sorry, from... Suchitra. I'm so sorry to intervene. There are few announcements and reminders. So here I go with the reminders, and then you may continue. Okay? Yeah, sure. Will it be okay? Okay, Yes, thank you yes. so much. Thank you so much. Okay. So Tuesday feels like that drop of ketchup about to get plopped on the peak part of samosa. Am I right, guys? So on this note, hello, beautiful people. This is your host, Ankita Sachdeva, and welcome back to day 2 of Frozen Food Session. भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे 2 के फ्रोजन फूड सेशन में. So guys, before starting the session, there are few reminders and announcements as well. Firstly, session will be conducted in both the languages, that is Hindi and English. हमारा session जो होगा वो दोनों languages में conduct होगा, Hindi and English both. Secondly, the recording of the session will be sent after 30 minutes of completing the session. सेशन एंड या कंप्लीट होने के 30 यानी कि 30 मिनट बाद आपको सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी. Then guys, the session is divided into 4 parts. हमारा सेशन जो है आज का वो 4 पार्ट्स में भाग में डिवाइडेड है. Firstly, we'll be learning how to make the recipes जो भी आज हमें सिखाई जाएंगी. पहले हम वो सीखेंगे, पूरा प्रोसेस सीखेंगे. Secondly, we'll be discussing questions regarding replacements and वेरिएशंस. तब हम रिप्लेसमेंट्स और वेरिएशंस के जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कि इस इंग्रेडिएंट की जगह हम क्या और यूज कर सकते हैं. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट शेल्फ लाइफ एंड प्राइसिंग, जैसे कि स्टोरेज क्या है किसी रेसिपी का या फिर प्राइसिंग क्या है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमन क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. एंड इन टुडेज सेशन गाइस वी विल बी लर्निंग हाउ टू मेक frozen paneer cheese mini samosa, burger patty, potato wedges, and frozen momos. So I know you all are very much excited because I am also very much excited. So buck up, guys. Now let's call our chef Sachitra. So Sachitra, over to you now. Yeah, hi everyone. Welcome all. Second day of frozen food. So let's start. Without wasting our time, I'll start the session. तो सबसे पहले हम लोग मैं आपका सबका वेलकम कर रही हूँ सेकेंड डे ऑफ फ्रोजन फूड क्लास में. तो सबसे पहले हम हमारे कल के पार्ट जो हमने फ्रोजन फूड रेडी करके रखे थे उसको फ्राइंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो मैं फ्रीजर से निकाल रही हूँ मेरा सारा, और ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था ताकि मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करूँ. तो आई हैव kept my oil for frying and I am taking the frozen foods from the freezer and I'll show how to deep fry them. Okay, so this is my oil and these are the fries which I have kept in Ziploc pouch. ओके. तो गाइस जो भी हमने कल बनाना सीखा था आज हम उसे फ्राई करना सीखेंगे. आज वी आर जस्ट गोइंग टू Is the light perfect. okay? Yeah, perfect, Suchitra. Okay, so these are all the yields of yesterday. These are the smileys, these are the veg strips and tikkis and potato french fries. Okay, so I'll be frying everything and showing to you so how to store and how to deep fry if you want to fry if you want to eat immediately. Okay, both will be learning. हम आज दोनों भी लर्न करने वाले हैं कि आपको अगर ज्यादा दिन तक फ्रीज करके रखना है तो आप क्या करोगे, कितना डीप फ्राई करना है, और आपको अगर तुरंत ही खाना है तो कितना फ्राई करना है, वो हम दोनों सीखने वाले. तो लेट्स स्टार्ट. मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ मेरा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं. तो यस इट इज हॉट. आपको ऑयल आपका इतना ज्यादा गर्म करना है क्योंकि ये सब फ्रीज चीजें हैं, बहुत ज्यादा ठंडी है. तो आप ऑयल में जब डालते हो तो ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो आपका ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. You should keep in mind that your oil is red hot, so that what happens when this freezed yield which we put in this oil, what happens, the oil temperature gets down and your what will happen, oil will be soaked in your patties or french fries. तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो है फ्रेंच फ्राइज वगैरह गरम तेल में अगर आप नहीं डालोगे तो अगर ठंडा हो जाएगा, अगर तेल ठंडा रहेगा तो सोकिंग होगी ऑयल की. तो आप सबको ये प्रॉब्लम आई थी कल कि हमें बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है जब हम लोग फ्राई कर रहे हैं. तो इसका कारण यही है क्योंकि ये फ्रीज होते हैं और ऑयल हमारा गर्म
गर्म होकर ठंडा हो जाता है तुरंत, तो आपको ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा रखना है और गैस फास्ट रखनी है हमेशा. ओके, कीप द टेम्परेचर हाई एंड गैस फास्ट. ओके, so I'm frying the fries first, or I'll fry the, because what will happen if I fry fries, तो थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर है वो ऑयल में आ जाएगा. तो फर्स्ट I'll be frying the टिक्कीज. ओके, सो गाइज यहाँ पे सचित्रा ने हमें ये बताया कि फ्राइज को पहले हम नहीं फ्राई करेंगे बिकॉज उसमें कॉर्नफ्लावर है तो वो पूरा ऑयल में आ जाएगा, तो इसीलिए हम टिक्की स्माइली टिक्कीज जो है उसे फ्राई करेंगे पहले. एंड यू कैन सी मैं एक एक डाल रही हूँ, सारे एक साथ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही ये फ्रीज है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है, तो ऑयल में एक साथ डालोगे तो पूरा जो है वो फैल जाएगा आपका. तो एक एक करके डालना है, so that you will be maintaining the temperature. आपका टेम्परेचर इससे मेंटेन होगा. ओके, तो एक दो डाले, फिर से ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, फिर हम नेक्स्ट डालेंगे. तो कल जिसके भी मकेन्स या जो भी है ये ऑयल में जाकर फट रहे थे, तो ये भी रीजन हो सकता है कि आपका बाइंडिंग ठीक से नहीं है, आपका ऑयल प्रॉपर गर्म नहीं है, आपने सब एक साथ डाल दिया हो गया ऑयल में, तो सारा मेल्ट हो गया ऑयल में फ्राई होने की जगह. तो दिस वुड बी द रीजन द ऑयल is not red hot and you have put all the chilled material inside this. ओके सो गाइज ध्यान से सुनिएगा जो भी टिप दी है भी हमारी शेफ ने, बिकॉज उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बनाने में, तो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. तो यू कैन सी जब हमने डाला था ये नीचे था, इट वाज डाउन व्हेन वी फिर अभी ये ऊपर आ गया है. तो ये इस टाइम पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ऊपर आ जाता है आपको टर्न करना है. तो 1 minute we had fried from one side and the other minute from other side. ओके, 1 मिनट हम लोगों ने एक साइड से फ्राई किया, और दूसरे मिनट पे दूसरे साइड पे फ्राई करेंगे. और फिर आपको अगर फ्रीज करना है लॉन्ग पीरियड के लिए, 6-8 मंथ्स के लिए, तो इस स्टेज पर आप इसको निकाल के कूल डाउन करना है. ओके What you'll do at this stage, you'll remove from oil and pull this smileys in the plate or in the room temperature. Okay, when they cool down, again keep in Ziploc packets and freeze for around 6 to 8 months. Okay, this is the method of frozen foods to be preserved. See, you can see there is no oil content in this. Why? Because I have taken red hot oil and I have not put all the yield inside at one time. ओके, सो ये अभी ऑयल हमें ज्यादा इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि हमने साथ में सब नहीं डाला है. राइट, सब साथ में डालते तो ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाता, और फिर फिर से ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक तो ये मेल्ट हो जाएंगे ऑयल के अंदर, फिर सब छूट जाएगा. ओके परफेक्ट राइट, या सो नाउ ये दिस आर रेडी टू फ्रीज अगेन. बट अभी मेरे को इसको फ्रीज नहीं करना है, आपको मेरे को तुरंत ही सबको पिक्स निकालने हैं, सबको खिलाना है. तो मैं क्या करूंगी, इसको फिर से ऑयल में ही डालूंगी और मैं पूरा फ्राई कर लूंगी. तो यू गॉट इट, मुझे अभी तुरंत खाना है इसीलिए मैं पूरा ही इसको फ्राई करूंगी. ओके Because so, I want to can I ask one question, क्योंकि थोड़ी queries आ रही हैं freezer and temperature से related, तो can I ask? Yes. Yeah, thank you so much. So can you please tell the temperature of the freezer जिसमें हमने ये रखा है? Freezer should be below -15. Okay. I have seen yesterday many of them have made और बहुत अच्छा सबका आया है, सारे ही ग्रुप्स में इतने सारे अच्छे पिक्स आए हैं. तो I was wondering कि मैंने प्राइम सिखाया ही नहीं, फिर भी लेडीज they are so very much like they are very clever. ओके so अभी जो हम इंडक्शन का टेम्परेचर है वो कितना रखना है हमें? Now it is 180 degree. You can increase also, 200 भी आप रख सकते हो. जैसे टेम्परेचर लो होता है तो मैं इंक्रीज कर देती हूँ उसका टेम्परेचर.
Okay, perfect. Is my voice clear? Yeah, it is. So it takes time because these are chilled products. So it will take time. So I'll be doing only 2 at a time and show you. Okay. I'll not deep fry all the products. ओके सो जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं ना, तो उसमें क्या कॉर्नफ्लावर होता है? जी, breadcrumbs, corn flour, they are common ingredients in frozen foods. ओके These are the KFC style crispy stripes. I'm trying this. या The oil is red hot. इसको 1 मिनट हो गया, उसके बाद मैं दूसरा डालूंगी ताकि मेरा टेम्परेचर जो है that does not come down. ओके सो गाइज यू नो व्हाट, यही खासियत है एक्चुअली में फ्रोजन फूड्स की. जब भी हम उसको फ्राई करते हैं ना, तो हमें एकदम से उसको खाने का मन करता है. एंड आई कैन सी लाइक सब बहुत एक्साइटेड हैं खाने के लिए भी. लाइक एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर इट, स्पेशली मी. सो चित्रा, आई कैन टेल यू दिस. Yeah, here also my kids are sitting around me. Okay. You all are lucky. You like, I like fried food, but I cannot eat क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैं बहुत Okay. So can we do the same in oven as well? No, actually you can see हम लोग इतना ऑयल ज्यादा गरम कर रहे हैं, तो ओवन में ये पॉसिबल नहीं है. इसका बहुत ज्यादा अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई भी ऑयल इसमें यूज नहीं किया है. तो हम लोग जब ओवन में डालेंगे तो कोई भी चीज है ना ऐसे कड़क होके आएगी, उसमें कोई क्रिस्पीनेस, उसमें कोई खस्तापना, वो कुछ भी नहीं रहेगा. Okay, perfect. हाँ, you can do in air fryer. Air fryer पर आप खाए, जैसे यहाँ पर 200 डिग्रीज मैंने रखा है. एयर फ्रायर में भी आप 180 200 डिग्रीज पर आप आराम से कर सकते हो. ओके सो सुचित्रा, आपने अभी एयर फ्राई के बारे में भी कहा, तो अगर फ्राइड ना करना हो एंड एयर फ्राई करना हो, तो देन व्हाट विल बी द प्रोसेस एक्चुअली? एयर फ्रायर, आई एम नॉट यूजिंग एयर फ्रायर, सो मुझे नहीं पता, बट आई एम टेलिंग यू कि जिनके पास है तो वो ट्रे निकालिए, आप उसमें डालिए और जो भी ऑयल का डालना है आपको वो डालिए, और उसको डिग्रीज होती है उसकी हीटिंग टेम्परेचर, वो लगाइए 200 to 180 डिग्रीज, और उससे भी हाई कुछ होगा तो, और फिर देन फ्राई देम फॉर द टाइम पीरियड दे हैव गिवन. थोड़ा मैन्युअल पढ़िए उस पे से, पर एयर फ्रायर में ये हो सकता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ. ओके परफेक्ट. तो ये भी क्रिस्पी भी अभी कैसे है, इसको आपको हाफ फ्राई करके निकालना है, तो निकाल कर ठंडा करके आप डीप फ्रीज कर सकते हो. इफ यू वांट यू विल हाफ फ्राई एंड डीप फ्रीज देम फॉर 6 to 8 months. बट इफ यू वांट टू ईट immediately, like I want it immediately, तो मैं और भी फ्राई करूंगी till golden crispy nice, and then like we will be eating now only, so I am frying totally. If you want to freeze, you can remove from the freezer, fry for at least 2 minutes, and then cool down and deep freeze again. Okay, this is the process of frozen food. ओके सो अभी अगर वी हैव टू ईट इट गाइज, अगर हमें अभी तुरंत खाना है तो हमें बहुत डीप फ्राई करना होगा अभी के ही प्रोसेस में, राइट? Yes. Okay. So now I have fried this McCain Smileys. These are crispies and aloo tikki, and at last we will be frying our French fries. Okay. So everybody is waiting for French fries, including me. तो एक और टिक्की डाल देती हूँ ताकि सब दो हो जाए. फोटो. So this टिक्की also इतना गोल्डन होने के बाद आप निकालिए, कूल डाउन कीजिए और डीप फ्रीज कीजिए at this stage. Or if you want to eat now only, then again deep fry till more time, like golden brown color. Okay. So चित्रा, आप हमें जो भी फ्राई हुआ है अभी, जितना भी like smileys we have done and we have done it, so उसमें हम कट करके कुछ दिखा सकते हैं कि how is the texture inside? Yes. So I'll be good.
cutting them. Okay, I'll keep okay. this in Thank the you so piece much, again. Suchitra. Thank Yeah. you. See, smileys are always crispy and soft. Like you can see the texture. Yeah, yeah, we can see it. Actually, it's really crispy. And this, Yeah, we can even hear the voice as well, right? yes, this is Yeah. crispy. Yeah, perfect. So I want to take pictures. So मैं अभी खोलूंगी नहीं. I'll take pictures and then I'll show from inside. Like. Okay, okay. So So, this are एकदम French fries. बहुत crispy है ऊपर से. Yeah, exactly, exactly. So, Suchitra, can I ask you one thing regarding like market वाला जो frozen food होता है वो भी half fried होता है क्या? हाँ जी, हाफ फ्राइड होता है. इसीलिए आपको क्या करना है, मार्केट से जब आप लाते हो, दे व्हाट दे टेल, जस्ट फ्राई फॉर 2 minutes. इसीलिए बिकॉज दैट इज ऑलरेडी हाफ फ्राइड. Oh, okay, okay, okay. तो हमें भी अभी यही करना है, हाफ फ्राई करके रख, कूल डाउन करके डीप फ्रीज में प्रिजर्व करना है. बट yesterday इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 घंटे बाद फ्रीजर से निकाल कर फिर से डीप फ्राई करना मुझे बताना पॉसिबल नहीं था. So this is aloo tikki. You can hear. So ये भी crispy है because of that rava coating. ये. Yeah, exactly. We can hear that crisp sound as well, right, Yes, guys? and see the coating of the rava वो निकली नहीं है just because हमने slurry में dip करके deep freeze में रखा हुआ था. So because of that rava coating, this is the crisp and निकली भी नहीं है, छूट कर तेल में गई भी नहीं है oil में. ठीक है? Okay. That is why we have to deep freeze for 2 hours at least, so that the coating doesn't come out. ओके ओके सो गाइज हमारी शेफ ने अभी यही कहा कि हमको 2 आवर्स तो मिनिमम सुचित्रा रखने है ना डीप फ्रीज के लिए, ताकि जो कोटिंग है बाहर की वो निकले ना, राइट? ओके ओके. So this is the French fries which I have put in the oil. You can see. Yeah, Suchitra, can you be please more audible, please? Yeah, because of this oil sound, I cannot speak loudly. Okay, okay. Oil sound is coming over. Oh, okay, okay, okay. ओके सो जब हम डीप फ्राई करते हैं तो कितने टाइम बाद जिप बैग में फ्रीज करेंगे? ओके, रूम टेम्परेचर में आने के बाद, राइट? ओके ओके. And what about shallow fry? Can we shallow fry it? You can shallow fry this tikkies. Tikkies आप shallow fry कर सकते हो. This cannot because इसको deep fry करना होता है क्योंकि double coating है, तो अंदर तक oil जाना जरूरी है. But tikkies you can shallow fry. Okay, okay, okay. So now you can see this stage पर after 2 minutes when the bubbles are gone, you can remove that is half fried. These are half fried French fries. You can take out of the oil and then you can freeze up after cooling. Yes, yes. At this stage, now what has happened over here? The oil was of we had fried ये टिक्कीज जो फ्राई की थी तो सारा थोड़ा सा रवा इसमें आ गया था, तो फ्रेंच फ्राइज पर आ गया है थोड़ा, तो वो रवा का कोटिंग दिख रहा है. यू कैन सी थोड़ा सा ये ठीक है, इस स्टेज पर आप निकाल सकते हो. बट नाउ आई वांट टू ईट इट इमीडिएटली, तो मैं थोड़ा सा और फ्राई करूंगी टिल गोल्डन एंड देन आई शो यू हाउ क्रिस्पी दे आर. ओके ओके. And what about like, ma'am, if we have wheat and potato starch, how to use for making momos covering? Any tricky way? What for momos covering? So we will be using maida dough. Okay, okay. That is totally different. This is the dry coating which we had done.
And for momos, we have to make a dough. Today we'll be saying that only. Yeah, exactly. Guys, आज उसी की क्लास है, तो we have to wait for it. इसको फ्राई करने के बाद बस हम स्टार्ट ही करने जा रहे हैं. So there is one question, like if we want to eat immediately after making them, we should not dust fries with corn flour. No, because of corn flour, what happens? The crispiness comes due to corn flour. When we dust the corn flour, the crispiness comes due to that, and the taste which you get from McCain's, वो थोड़ा सा से mild taste जो flavor होता है ना, that comes from corn flour only. Okay. So now I'll take them out. So guys, अब हमारे French fries भी almost completed है, right, Suchitra? Yes, French fries are completed. Now I'll shift the gas and we'll do the further process. I'll show you the French fries crispness. Yeah, the crisp sound is coming actually. Yes, coming. So you have to fry this much. Okay. Up, you can feel the voice. Yeah, we can hear it. Yeah. Okay, so you want to take pic from this, or shall I post on the group? Yeah, it will be okay. You can post it on the group as well. These are today's fries. Wow, Okay? guys, isn't it looking really yummy? And everybody's must be craving for it. And भाई अब तो शाम का time भी होने वाला है, lunch कर ही लिया होगा आप सबने. So you can have it with your evening snack, like evening tea as well, right, Suchitra? Yeah. तो इवनिंग में मैं इसका थोड़ा सा डिप्स के साथ पिक्स आपको पोस्ट कर दूंगी. ओके? Okay, perfect. So I'll wash my hands and come down. Sure. So get excited, guys. Now we'll be going with today's course, today's procedure regarding frozen paneer cheese mini samosa. Like samosa is so bhai everybody's favorite, including mine. Yes, so we'll proceed further. Today we're making samosas. Like samosa के लिए हमको जो stuffing बनानी है, that will be of paneer and cheese. So it will be just a mixing part. So you have to take a bowl. We'll make the stuffing of samosa first. We'll take a bowl. In this, we'll put grated paneer. Okay. Grated cheese. I'm taking half the quantity, half the recipe, okay? Okay. Half the recipe, okay. I'm making half the recipe. You can follow the PDF. Yeah, so Suchitra, one thing I just wanted to add. So guys, here's a reminder as well. You can open your PDF while watching the session, while watching the class. आप अपने PDF भी open कर सकते हो session को देखते देखते. It will be really helpful for you as well. Yeah, Suchitra, you may proceed now. Okay, this is grated paneer, grated processed cheese I have taken. The cheese cubes which we get in the market, Amul cheese cube, that I have taken. I have grated them and taken. This is mixed herbs which I am putting. Okay. This is green chili paste. This is black pepper powder. These are chili flakes. And this is salt. Here, if you want, you can put Maggi cube that I showed yesterday. You can put that also. But I'm not putting. So I've used salt. Okay, so this is your stuffing ready. Yeah. So Suchitra, हमने stuffing prepare की अभी. हमने एक bowl में guys mix grated paneer डाला है, grated cheese डाला है, crushed chilies, pepper powder, oregano and chili flakes. Right, Suchitra? Yes. Yeah. So अभी we are mixing. अभी हम सब अच्छे से mix कर रहे हैं सबको. और ये हो गई हमारी stuffing ready है cheese paneer samosa की. तो for covering part, we have taken maida, suji, oil and ajwain and salt, and we had made a dough out of it. We have to make a tight dough. Okay, so this is the dough which I have made.
Okay, This is okay. the dough. See the texture, it is firm and tight. Okay. So we Yeah. will keep this for rest for half an hour. Okay. Still that Okay. time, what we will do, we will make stuffing of momos also, because we have to pull that stuffing and then use. So पहले वो भी कर लेते हैं, पहले मोमोज की स्टफिंग भी बना लेते हैं. अभी पनीर की स्टफिंग बनाई समोसा की, फिर मोमोज की स्टफिंग बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. Okay, okay, perfect. So guys, अभी हमने समोसा की स्टफिंग यहाँ पे प्रिपेयर कर ली है, डो भी बना लिया है. लाइक सुचित्रा ने अभी दिखाया हमें कि डो बन गया है. बाकी हमें उसे कितनी देर के लिए सुचित्रा रखना है अभी? We have to rest it for half an hour. मैंने रेस्ट ऑलरेडी करके रखा है, पर मुझे ये स्टफिंग जो मोमोज की है वो भी कूल डाउन करनी है. तो इसीलिए क्या है कि ये कूल डाउन होने तक हम लोग रेस्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए ये पहले पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट ये हो सके. So I have taken oil in pan. Little oil, 1 teaspoon around. Okay, okay. So, chef, I must tell you, there's a message for you as well. Till then, this process is going on. मैं आपसे share करूँगी. So, मैम कुछ हमारे साथ भी tips share करना please. डिप्स इसके क्लास में इंक्लूडेड नहीं है. देन पर फिर भी कल मैं जब बर्गर का असेंबलिंग करूंगी तो बर्गर के साथ जो डिप जाती है वो शेयर करूंगी. अभी तो मैं सिर्फ सॉस रख रही हूँ और कुछ नहीं रख पाऊंगी आज, क्योंकि इसके साथ सॉसेज ही जाते हैं. Okay, yeah. Okay, so now my oil is done. मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर, गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट. ओके, मैंने अलग अलग से रखा हुआ है. यू कैन सी. Okay. एंड विल सॉटे करना है इसको अच्छी तरह से. So guys, अभी हम अच्छे से इसको सॉटे कर ले रहे हैं. Ginger, garlic and green chili, right, Suchitra? Yes. Just to remove the raw flavor of this, we'll saute them that time. Exactly. उसका raw flavor निकल जाए. In this now, after half a minute, we have to put this finely chopped onions. Okay. So guys, अब हमने अनियन डाला है. Let's saute for just a minute. We don't have to brown this, as we are not making any sabzi. This is the Chinese dish, so we have to do it on fast flame always. Okay. So, chef, can we use the usual potato ka filling also? In what, like in samosa? Yeah. We abhi did not filling abhi. हाँ जी, आराम से आप कोई भी फिलिंग यूज कर सकते हो. तो ये तो थोड़ा नया है, इसलिए आई एम शोइंग यू दैट दिस इज समथिंग यूनिक. सो आई एम शोइंग यू दैट समोसा की स्टफिंग तो आजकल सबको ही आती है, इसलिए आई एम शोइंग समथिंग डिफरेंट. Okay. Okay, the onions are transparent. So I'll put this veggies. I have finely chopped like capsicum, carrot, capsicum, carrot, green peas and French beans लिया है इसमें, right? हाँ, तो ये मिक्स वेजिटेबल्स है. आप पनीर भी ले सकते हो, मैंने पीडीएफ में दिया है, आप उस क्वांटिटी में लेना है. तो मैंने सारे मिक्स करके रखे हैं अभी. ओके, तो आई विल पुट दिस and chop it. So guys, now here shall I? Yeah, Suchitra, sure. Okay, so here what happens when your veggies are soggy or they are moist, you have to do, you have to squeeze water from the veggies. अगर आपके veggies में ज्यादा moisture है, ज्यादा पानी है, तो आपको पानी को किसी भी हैंकी में या किसी चीज में, रुमाल में लेकर उसका पानी उसको स्क्वीज करना है. तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे ड्राई ही है वेजीज.
पर आपके अगर ज्यादा मॉइस्ट है तो आप हैंकी में डालकर उसको पानी निकाल लेना उसका और फिर यूज करना. ओके, रिमूव वाटर एंड देन यूज द वेजीज. दे आर रॉ वेजिटेबल्स. ये कुक नहीं है, ये कच्चे वेजिटेबल्स है, ये रॉ है. Okay, okay. And also, Suchitra, just wanted to ask one thing. Like अभी हमने filling बनाई समोसास के लिए भी, तो उसमें can we use pizza cheese? Yes, you can use, but क्या होता है when we deep fry something, it should not ooze out. The pizza cheese, it will melt and it will ooze out. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर आपने कवरिंग बराबर से ठीक से की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसा ना हो कि आपका चीज मेल्ट होकर बाहर आ जाए. तो ये ध्यान रखना है आपको. Okay, okay. And what about mozzarella cheese in samosa with processed cheese? Yes, that is the same. Mozzarella and pizza cheese are the same. वही होगा कि वो मेल्ट होकर बाहर ना आ जाए. ये ध्यान रखिए, आप चीज कोई भी यूज कर सकते हो. Now in this I'll put black pepper powder for seasoning, and this is a Maggi cube again I am adding. If you are not using Maggi cube, you have to add salt in this. I am using Maggi cube, so I am not adding salt. Okay, in this I'll also put soya sauce. This is soya sauce. It is optional. If you don't want, you can skip this also. Okay, okay. So guys, ये भी optional है. अगर आप चाहो तो इसे skip कर सकते हो. Soya sauce, right? Yes. Yeah. तो अभी आपने हमें मैगी मसाला बताया था. magic masala in magic instead of magic cube. So can we use Maggi masala instead of magic cube? No, that is different. That is for sabzi. Okay. So I have never used this. This is a seasoning cube actually. This is just for seasoning. ये just ऊपर से डाला जाता है seasoning के तौर पर. वो सब्जियों में use होता है. That is different and this is different. I have not tried that. And I am always using this one. Okay, okay. So, Suchita, just one thing I just wanted to add. Guys, we'll be taking all your replacement questions कि इस ingredient की जगह क्या use हो सकता है. Just after completing this process, we'll be taking all your replacement questions. As we can see, we are getting lots of queries regarding replacements of ingredients. So don't worry, guys. We'll be taking your questions right now. Now, you can see this is dry and cooked. Yeah. Okay. So we will keep this for cooling aside, and then we'll go to the next recipe. That is our veggies. We'll go to the veggies. Okay. So today I'll be cutting the veggies in front of you. Yesterday some people they had a problem that ma'am हम समझ नहीं पाए French fries कैसे कट करना है. तो मैं आपके सामने अभी veggies कट करके भी दिखाने वाली हूँ. These are the big potatoes I have taken, which I have kept in chilled water. The purpose is that इससे पोटैटोस फर्म होते हैं चिल्ड वाटर में रखने के कारण और ब्लैक भी नहीं होते थे. ठीक है. Okay, okay. So actually, while making frozen foods, you have to use gloves and then make. But now today I have to cook so much things. So if I'll be wearing gloves, तो मुझे फटाफट काम नहीं आएगा. तो आप लोग अगर बना रहे हो, आपको फ्रोजन करना है, तो ये भी ध्यान रखिए हाइजीन के तौर पर आपको ग्लव्स पहनकर और फिर काम करना है. ओके, दिस इज जस्ट आई एम टीचिंग यू to how to keep hygiene. Okay, so these are potatoes. You have to cut them in half. Okay. Okay, okay. Again half. Got it? And again half. Okay, got it? You have to. ये है हमारे वेजेस. जस्ट इसको हाफ हाफ में कट करना है इस तरह से. Okay, and okay. You have to keep this thick. या सो गाइज जैसे कि सुचित्रा ने अभी हमें बताया कि अगर किसी को कोई भी डाउट था कल के सेशन से रिलेटेड फ्रेंच फ्राइज से कि कैसे कट करना है, तो अभी आज वो हमें बता रही हैं कि वेजेस के लिए जो प्रोसीजर वो बता रही है सेम वी हैव टू फॉलो फॉर फ्रेंच फ्राइज एज वेल, राइट? फ्रेंच फ्राइज इज डिफरेंट एंड दिस आर डिफरेंट एक्चुअली. फ्रेंच फ्राइज के लिए अलग फिंगर्स काटे जाते हैं, वेजेस के अलग होते हैं. ओके, ओके. So what you have to do, we have to cut this and we have to keep this in chilled water.
for around 2 hours. Okay, so this is my chilled water and I'm keeping this. तब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम इसे चिल्ड वाटर में ही रखेंगे तब तक, ताकि हमारा पानी भी गर्म हो जाए और हमारा ये फॉर्म हो जाए पोटैटोस चिल्ड होके. Okay, okay. So, Suchitra, one thing I just wanted to ask about, like, there's a query as well. Should we boil the potatoes in the same way as yesterday for the samosas? And yes. You have to any stuffing or anything frozen. You have to do boiled potato on steam only, because what will happen? It will not get soggy. Water content कम होगा उसमें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है? Okay, okay. So now till this veggies are getting chilled, what we'll do? We'll make the patty. मेकिंग ऑफ पैटी कर लेते हैं हम. ठीक है? बर्गर पैटी की ओर जाते हैं. Okay. तो अभी ये क्लास जो है ना, ये एक एक करके ही करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक की प्रोसेस थोड़ी लंबी है. तो इसके ऊपर से स्किप करके दूसरे ऊपर यही सब ऐसे ही करना पड़ेगा. तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ ऐसे. ओके. सो गाइज, अब हम यहाँ पे बर्गर पैटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बर्गर पैटी बनाना सीखेंगे. सो या सुचित्रा. Okay, so here I have taken boiled potato. Half quantity I am using. You have to take according to your PDF. Okay, मैं यहाँ पर half quantity use कर रही हूँ. In this, these are the finely chopped vegetables. They are raw vegetables, mixed vegetables, anything you can take you like. Okay, so I have taken carrot, onion, green peas, capsicum, French beans, etc. Okay, so in this I'll put all the masalas like black pepper powder, chaat masala, garam masala, Maggi cube or salt, whichever you like, and little salt I'll be using, क्योंकि हो सकता है Maggi cube इतना sufficient न हो salt, तो you can do that. Okay. Okay. And this is breadcrumb. So what I'll be doing, I'll be mixing everything. Now here I'll tell you one tip. Yesterday I forgot to tell you कि अगर मैंने जो PDF में दी है, the measurements are given in PDF. If from that, if you are making and you're this dough, it is getting loose, so you can add always you can add breadcrumbs extra or corn flour to it. Okay. So Suchitra, can I ask you one question, because there are few queries regarding the process? Yes, sure. Like अभी हमने वेजीज का जैसे देखा कि आपने कहा था कि वेजीज में वी डू नॉट लेट लाइक वाटर, जब आ जाता है ना वाटर कंटेंट उसमें, तो मॉइस्ट नहीं होना चाहिए वो. तो इसीलिए देयर इज अ क्वेरी, कैन वी माइक्रोवेव वेजीज टू मेक देम ड्राई और रिमूव वाटर कंटेंट? No, dear. What will happen while you're microwaving the vegetables? They will get cooked and they will lose their taste and all. ना इसमें कच्चा यूज करना है, जहाँ पर कच्चा यूज करना है वो कच्चा यूज करना है. आपको ड्राई करना है. सिंपली मैंने क्या किया, ब्रिंग इट क्लॉथ. मैंने क्या किया, वेजिस को ऐसे, ये मेरा क्लॉथ था, इस पर मैंने ऐसे इसको वेजिस को डाला, थोड़ा सा ऐसे करके स्क्वीज कर लिया, तो पानी तो कुछ निकला नहीं, बट जो था वो क्लॉथ यू कैन सी इट हैज गॉट डैम्प. थोड़ा सा पानी खींच लिया उसने. ओके. सो नहीं गाइस, अब माइक्रोवेव नहीं यूज कर सकते हो वेजीज को ड्राई करने के लिए. यू कैन सिंपली यूज अ क्लॉथ फॉर द सेम. So now we have to make patty out of this. So I will be making on hand only. You can always use your mold or something, but I'll be teaching you with hand. What you have to do, just roll and simply make this kind of patties. The patties size should be size of your burger bun. Okay? तो ये याद रखना है, पैटी साइज आपके बर्गर साइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो many people are asking, मैम कितने बनेंगे इसमें? So it depends on your size of the patty, right? Okay.
Now this patty you can shallow fry always. Any patty you can shallow fry as they are flat inside shape. Okay. So till then this patty is in making. So Chitra, can we take some replacement questions? अभी तक replacement की हम क्या बात कर सकते हैं थोड़ा? हाँ जी कर सकते हैं. Yes, you can take. Okay, thank you so much. So firstly about frozen paneer cheese mini samosa. तो ingredients के बारे में मैं पूछूंगी. मैदा, अगर मैदा का कोई है alternative? Yes, you can take wheat flour, but I suggest take half wheat flour and take half maida. Okay, perfect. सूजी, रवा, all this इसका कोई ingredient alternate? Yeah, सूजी की जगह आप you can take breadcrumbs always. Okay. Then ajwain, paneer. Ajwain, if you don't like ajwain, आप kalonji डाल सकते हो. Kalonji you get in the market, black onion seed और nigella seed बोलते हैं उसको. वो डाल सकते हो, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है. And if at all you don't like, आप skip कर दो, कोई बात नहीं. Okay. पनीर की जगह replacement you can always add आलू. Okay, so we can add potatoes instead of paneer. yes, Okay. yes. Yeah. And then what about processed cheese cube, grated green chilies and black pepper powder? Yeah, black pepper powder. Instead of black pepper powder, you can use white pepper powder also. No problem in that. Or if you don't have in the house, तो आप skip कर दो, कोई problem नहीं. Okay, so इसको हम skip कर सकते हैं. अगर white pepper powder भी नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हो. So I'll wash my hands and come. You can take the question. I can see. Okay, sure. Then we used oreganos, chili flakes and all this. So इसके कोई replacements हैं क्या? इसकी कोई replacement नहीं है, but you can skip oregano की जगह आप mixed herbs use कर सकते हो. Okay guys, so हमने फ्रोजन पनीर चीज मिनी समोसा का रिप्लेसमेंट, जो भी इंग्रेडिएंट्स के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो वो ले लिए हैं. अभी हम बढ़ते हैं बर्गर पैटी की तरफ. सो शेफ, वी यूज बॉइल्ड पोटैटोज, चॉप्ड मिक्स वेजिटेबल्स. सो आपने चॉप्ड मिक्स वेजिटेबल्स के बारे में तो बताया कि हम कोई भी वेजिटेबल्स यू वांट यू कैन टेक, राइट? Yes. Yeah, okay. And boiled potatoes की जगह कुछ और? Yeah, you can use boiled raw but bananas you can take. Okay, perfect. Bread crumbs and Maggi. Okay, magic cube के बारे में तो आपने कहा no replacement, right? नहीं, मैजिक क्यूब की जगह आप सॉल्ट डाल दीजिए. नो एंड स्किप मैजिक क्यूब लाइक. Okay, perfect. So now I'm taking your maida and corn flour to make the slurry for 14 burger patties. Okay. So yesterday we have seen, we had taken the maida and corn flour, we had added Okay. water into this, and we are making a liquid like slurry, like milk consistency. Okay. So guys, अभी हमने आपके कुछ replacements questions लिए, दो dishes के, recipes के. So आगे भी we'll continue the replacement questions. So Chef, there are a few queries regarding the process. Can we take the same? Yes, you can. Okay. Just look at the process what I am doing, and we can take the queries also side by side. Yeah, sure. Perfect. So जैसे कि हमने सोया सॉस कितना यूज किया है, कितना लिया है समोसा फिलिंग में? ये मैंने जस्ट हाफ टी स्पून लिया. आपके पीडीएफ में 1 टीस्पून है. Because I'm taking half quantity ना, I'm making, so half लिया मैंने. Okay, perfect. और वेजीज तो हमने रॉ लिए ना, like there's one query कि वेजीज are cooked or raw. नहीं, we have taken for patties, we have taken raw because we'll be shallow frying them, we'll be deep frying them, no problem in taking raw vegetables. And here for filling we have cooked in the pan. इधर भी हमने raw ही लिए हैं. Okay. So now we have made the slurry. Okay.
We'll dip All this right. patty in this slurry. I'll be using fork so that my hands doesn't get wet. And coat this with breadcrumbs. Okay, okay. So what will happen with breadcrumbs? What does happen? It gets crispy, nice texture, the Yeah, crispy texture of the patty. Burger patty में जो crispiness होता है, that we get from this breadcrumbs. exactly, guys. Breadcrumbs से you can just add little bit of crispiness. आपको crispiness मिल सकती है breadcrumbs को use करके. So that's what we are doing here also. Okay, so 2 I'll be showing now, and just I'll be doing afterwards. Okay, so that's time is Okay, free. sure. And chef, like in burger patty, you have added breadcrumbs in dough, right? या डो में भी डालना है और ये कवरिंग के भी लिए भी लेना है, तो बोथ पोर्शन. डो में 4 tablespoon दिया हुआ है, that is for dough. Okay, for covering I have not given mention, as I have just mentioned coat with breadcrumb because ये आप पे डिपेंड है आपको कितना कोटिंग कर रहा है, right? ओके सो गाइस, जैसे कि हमारे पास ये पहले भी एक क्वेरी आई थी, वेरी कॉमन. या वी कैन सी इट. So now I'll freeze them for 2 hours, then pack in Ziploc package. ओके, परफेक्ट. सो हमारे पास एक क्वेरी आई थी जी. या सो चीज को लेके, लाइक फॉर एग्जांपल इन समोसा विद प्रोसेस्ड चीज, कैन वी यूज मोज़रेला चीज इन समोसा विद प्रोसेस्ड चीज? हम मोज़रेला चीज के साथ साथ प्रोसेस्ड चीज भी यूज कर सकते हैं शेफ? हाँ कर तो सकते हैं, but the problem is that mozzarella cheese has a tendency to melt very fast. So what will happen after it melts? It can ooze out of the samosa covering. Okay. So we don't want that cheese to come out, right? So now this is water. You can see boiling hot water. Okay. Yeah. What we are doing, we are taking this wedges and putting this in boiling hot water. Gas चल रहा है मेरा. Yesterday in French fries we have to shut off the flame and then put French fries. In wedges we have to cook them for 5 minutes. मतलब गैस चल रहा है और फिर उसको डालना है. Okay. Sorry, because they are thick, right? They are thick in shape. तो इसको कुक करने के लिए 5 मिनट गैस ऑन रखना है आपको. So I'll see the timing and I'll shut the gas after 5 minutes and remove the wedges. Okay. And also I'm also putting salt in this. 1 tablespoon of salt. तो गाइज अभी हमने इसमें सॉल्ट भी डाला है, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है हमने. एंड हम 5 मिनट तक गैस ओपन रखेंगे, राइट? अभी हाँ जी, हाँ. ओके. सो शेफ, अभी हमने जैसे कि स्लरी बनाई थी, तो इन स्लरी सॉल्ट भी पुट करना है क्या हमें? हाँ, आपको अगर चाहिए उसको मैटर नहीं करता है क्योंकि कवरिंग आने वाला है. स्लरी में बहुत ही पतला कोटिंग होता है, तो आपको फिर भी अगर चाहिए तो यू कैन पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. So I will be cooking this for more 5 minutes, so we can take the questions. Okay. Yeah, so Sachitra, there are a few queries, like ratio for slurry of maida and corn flour. 2 tablespoon I have mentioned in the PDF. 2:2. Yeah, 1:1 you can take. 1:1, like आपने पूरी half ली हुई है अभी, तो 1:1. Yeah, Okay, same proportion है, same proportion. Same Maida or proportion corn है. flour. Yeah. Okay. So, ma'am, are we using anything mixed with breadcrumbs for covering? It's just plain. नहीं, it is just plain because tikkies are flavorful. Yeah, this is just a coating. In crispies, what I have done, I have put all the seasoning and all. Why? Because cornflakes are very raw in flavor. In bread, already salt is there. Breadcrumbs में salt होता है, right?
तो क्रिस्पीज में मैंने क्या किया था, मैंने उसमें सीजनिंग इसलिए डाली थी क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स जो होता है इट इज वेरी रॉ इन टेस्ट, और मैं हमने 2 बार कोट किया था, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा इटालियन सीजनिंग, ये सब थोड़ा थोड़ा डाला था, जस्ट क्योंकि मेरे घर में वैसे अच्छा लगता है। इट इज टोटली ऑप्शनल, आप उसमें आप ऊपर कोटिंग के लिए नहीं कुछ ऐड करो, डायरेक्टली प्लेन ऐड कोटिंग रखो तो भी चलेगा, ठीक है। ब्रेड क्रम्स, इफ यू आर कोटिंग विद ब्रेड क्रम्स, इट इज लाइक सॉल्ट इज देयर इन ब्रेड क्रम्स, तो आपको सॉल्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। Exactly. Okay, okay. So you said ना कि मोज़रेला चीज और समोसे के समोसा विद प्रोसेस्ड चीज का हमने एक क्वेश्चन लिया था. So instead of that, which cheese to use then? प्रोसेस्ड चीज क्यूब, जो नॉर्मल अमूल चीज क्यूब आते हैं ना, जो छोटे छोटे क्यूब हैं, प्रोसेस्ड चीज बोलते हैं उनको, दैट वी आर यूजिंग। आई शो यू दिस काइंड ऑफ, Yeah, perfect. It is usable. Yeah. या अमूल चीज क्यूब, Okay. दे आर So इजीली अवेलेबल। yeah. It is easily available in the market. Right. Yeah. So can we take few more replacement questions regarding other two dishes, potato Yeah, veggie? sure. Yes, sure. Yeah. Okay. So yeah. So replacement for potato, garlic powder, red chili flakes. See, instead of garlic powder, you can use garlic paste always. But as I said you, कि आप हमको सारा जो ingredients है, that should be low in moisture. Moisture free करना है हमको सब. So use less like paste. Use powder forms of all. तो ये सब आपको लेना है, इसीलिए पाउडर मैंने बोला हुआ है. बट इफ यू आर यूजिंग फॉर होम पर्पस, आपको फ्रीज नहीं करना है, आप मैनेज कर सकते हो मॉइस्चर, तो यू कैन ऐड पेस्ट ऑलवेज, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट आप ऐड कर सकते हो. बट अगर आपको बहुत मॉइस्चरी हो रहा है, आपके आलू जो है ये स्टिकी है ज्यादा, तो ऑलवेज यूज पाउडर फॉर्म्स ऑफ एवरीथिंग सो दैट वो मैनेज हो सके आपसे. दैट इज द पर्पस बिहाइंड दैट. Okay. Then what about red chili flakes, corn flour, and oregano? रेड चिली फ्लेक्स, तो रेड चिली पाउडर यू कैन यूज ऑलवेज. कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट पाउडर यूज कर सकते हैं, या फिर पोटैटो स्टार्च यूज कर सकते हैं आप. Okay. Then मैदा का कोई मैदा फॉर व्हाट, लाइक कवरिंग समोसास. I told you. We're talking about potato wedges. पोटैटो वेजेस में मैदा तो इट इज कंपलसरी, बिकॉज वो क्रिस्पीनेस जो है ना वो मैदे से आता है. So you cannot use wheat flour in that. वो अच्छा भी नहीं लगेगा टेस्ट में, because wheat flour has the tendency of that like पता है ना आपको, अलग सा टेस्ट आता है उससे. Exactly. Yeah. And Maggi cube का तो you said like Salt. कोई और you can skip, or otherwise you can use salt, right? Yes. Yeah. Okay. So now 5 minutes are over. So Okay. I'll show you. I will shut down. मैंने गैस बंद कर दिया है और I will show you. ये ऐसे firm है, they are firm, but they are half cooked. Like they are very hot. तो मेरा नाइफ जो है ये इसमें जा रहा है, लेकिन ये कुक्ड है, हाफ कुक्ड है, ठीक है. Okay. 5 मिनट्स आपको बॉईल करना है ऑन फास्ट फ्लेम. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पानी ड्रेन करना है और इसको सुखाना है एक कॉटन क्लॉथ पर फैन के नीचे. ओके, so I'll drain water and come back. Okay. So guys, there are few queries related to the procedure as well. So we'll be asking all your queries abhi. So yeah. So guys, आपके लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है. जैसे कि हमने समोसा बनाना सीखा अभी, मतलब ऑलमोस्ट फिलिंग बनाना सीखा अभी, और हम समोसे की बात करेंगे आगे, पूरा बनाना सीखेंगे प्रोसीजर. सो गाइज, आपको पता है कि समोसा एक ऐसा प्रोमिनेंट डिश है हमारी कंट्री का, हमें लगता है कि इंडियन डिश है, लेकिन एक इंडियन ओरिजिन का डिश नहीं है समोसा. एंड इसके बहुत वेरिएंट, बहुत वेराइटीज ऑफ नेम्स भी होते हैं. सो आप हमें चैट बॉक्स में बताओ या फिर ग्रुप में मैसेज करो कि आपको समोसा का या फिर आपकी जगह समोसा को और डिफरेंट नेम्स या वेराइटीज ऑफ नेम से बुलाते हैं क्या, कौन से नेम से हम और बुला सकते हैं.
So we'll be waiting for your answers as well. So I have drained all the water. Now I've Okay, taken okay. this napkin. As I have showed you yesterday, आपको एक napkin या cotton cloth लेना है. You have to place this drained wedges and keep them under fan for around half an hour, 10 minutes, half an hour kabhi. Okay? It depends on the climate. You have to see that they are dried from the sides, like ऊपर से ऐसे dry दिखना चाहिए आपको. इतना आपको dry करना है, हाथ में गीला नहीं लगना चाहिए. Okay? So I'll keep this aside under the fan and we'll proceed further. Okay, 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 शेफ. Thank you so much. तो शेफ आपने अभी कहा कि हमको इसे आधे घंटे के लिए रखना है, right? हाँ जी. फैन के आधा नीचे. घंटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है. On the safer side, half an hour I'm saying, because many times what happens that if I tell 10 minutes and you take the wedges and you coat the masala, all will get soggy. Okay? तो अगर आप थोड़ी देर ज्यादा टाइम रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट आप थोड़ा कम टाइम रखोगे तो सॉगीनेस आ जाएगा. ओके? सो माइंड वेल, वो ड्राई होने तक आपको रखना है. दैट इज अप टू यू कि हाउ मच टाइम यू आर कीपिंग. Okay, okay, perfect, perfect. So can we use rice flour for covering with corn flour? Yes, you can use, but rice flour को corn flour जैसी binding नहीं आती है. And it doesn't, it is a very heavy, like corn flour is very light in texture. So that is the effect, like texture अच्छा नहीं होगा. Rice flour से कैसे होगा? बहुत मोटा मोटा ऐसे covering आ जाएगा. Okay, 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 perfect. Okay, so now we will be taking samosa portion part. We'll start with samosa. चलेगा? Yeah, yeah, sure, sure, chef, sure. Okay, guys, so मैंने आपके आंसर्स रीड किए. वी आर गेटिंग वेराइटी ऑफ आंसर्स लाइक तिकोना, सिंघाड़ा. ओके, बेसिकली आंसर सिंघाड़े के लिए है. नटखट समोसा भी एक आंसर है. सोमस भी एक आंसर है. सो एक बार प्रोसेस और मावा, कविता मैम ने तो बोला है मावा समोसा. ओके मैम, सो एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बताऊंगी और किस किस नामों से बुला सकते हैं हम इस पर्टिकुलर समोसा को एक्चुअल में. ओके, सो शेफ अभी हम क्या कर रहे हैं? I have taken dough of samosa जो मैंने बनाकर रखा था, जिसमें मैदा है, ऑयल है, सूजी है, सॉल्ट है और एक टाइट डो बना लिया है मैंने. टाइट इसलिए बनाया है क्योंकि हमको समोसा का जो कवरिंग है उसका शेप रिटेन होना चाहिए, राइट? इसीलिए टाइट डो बनाना है आपको. इसीलिए सूजी भी ऐड की गई है क्योंकि हम अच्छा टाइट डो इसका बना सके. ओके ओके ओके. So I'll be making only आपको मिनी समोसा बताओ या फिर I'll show you मिनी समोसा. मैं तो इससे दो ही बनाने वाली थी, बट आई रिकॉल किया अभी हमको मिनी समोसा बनाना है, राइट? Okay, okay. So guys, we'll be making mini samosas here right now. ओके, so this is a tight dough, nice tight dough. आप इसी तरह से बनाइए. इससे थोड़ा सॉफ्ट होगा तो चलेगा, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट रोटी की तरह मत बनाना, क्योंकि हम लोग जो समोसा की कवरिंग बनाएंगे दैट शुड बी स्टिफ, तभी उसका शेप मेंटेन होता है. ओके ओके ओके. इसीलिए सूजी डाली जाती है इस पे, बिकॉज वी हैव टू रिटेन द शेप, वी हैव टू कीप दिस डो टाइट. ओके ओके. And we'll make a oval chapati, like oval. Okay, so guys, we are making chapati of oval shape. हम circle नहीं बना रहे हैं, oval shape की बनाएंगे अभी. टाइट डो होने के कारण थोड़ा सा टाइम लगता है. देन व्हाट विल डू, विल कट दिस फ्रॉम मिडल डायमीटर. ओके ओके ओके. then we'll take another spoon. I'm taking water in the bowl. इसको साइड में पानी लगाना है. I'll say
थोड़ा सा पानी लगाना है so that the covering sticks. Okay. ओके ओके सो Then जैसे still कि शेफ आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लाइक यू व्हाट यू डिड, आपने डो को रेस्ट किया था थोड़ी देर के लिए. सो डू वी नीड टू रेस्ट द डो फॉर सम टाइम फॉर समोसा, एंड पर्टिकुलरली कितना टाइम होना चाहिए? ये समोसा के लिए भी हाफ एन आवर तो पक्का रखना ही है आपको. वाई? बिकॉज इसमें सूजी डाली हुई होती है तो वो सूजी थोड़ा सा उसको मिक्स होने टाइम लगता है. रेस्ट देना जरूरी है तभी सूजी और आटा दोनों अच्छी तरह से मिक्स होगा. ओके. सो नाउ आई हैव पुट दिस फीलिंग. तो अभी कैसे क्या करना है समोसा का, प्लीज आप सब लोग ध्यान से देखिए बिकॉज ये प्रोसीजर बार बार तो रिपीट होगी नहीं. वैसे वीडियो रहेगा आपके पास. तो ये करना है आपको ऐसे, यहाँ से यहाँ, एंड ये वाला यहाँ से यहाँ. ओके ओके तो दिस आर, और ये शेप कभी रहेगा जब आपका डो फर्म है. कैन सी? या वी कैन सी इट. So one more I'll be showing you. Apply water on the edges. आपको पानी थोड़ा सा लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है. Just dip water and spread on the edges. Put the filling. Filling आपको जितनी चाहिए आप desired filling आप भर सकते हो, जितना आप मैनेज कर सकते हो. Then take this side. यहाँ पर दबा दो. Take this side और ये यहाँ पर दबा दो. Okay. So these are the samosa done. Okay. ओके ये अभी हम लोग I'll teach you to rest. I'll be doing afterwards. Okay. ओके ओके So now we'll go to momos portion. This will I'll be freezing this also. आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है अभी तो deep fry this for 2 minutes and cool down and then deep freeze for around 3 to 4 months. ये समोसा को कुछ नहीं होगा. ठीक है. ये आप प्रिजर्व कर सकते हो बट हाफ फ्राई करने के बाद. ओके. तो ये आप तुरंत ही आप इसको ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हो. ओके. बट एज दिस इज अ फ्रोजन फूड क्लास तो मैं आप इसको फ्रीज करके आपको कल फ्राई करके बताऊंगी. ओके. ओके ओके इसमें आप बड़ा साइज भी बना सकते हो. इट इज अप टू यू आपको कितनी साइज बनानी है. Now we will be making momos. So for momos, गाइस अब मोमोज की बारी है. I have already made dough of momo. तो शेफ पोटैटो स्टार्च क्या है, लाइक यू मेंशन ना, रिप्लेसमेंट कॉर्नफ्लावर की जगह हम यूज कर सकते हैं, तो पोटैटो स्टार्च. It is starch of potato. वो पोटैटो का स्टार्च होता है. एक्चुअली कॉर्नफ्लोर इज नॉट यूज्ड इन व्रत एंड ऑल ना. तो तभी इसका ये पाउडर कॉर्नफ्लोर की जगह पोटैटो स्टार्च का पाउडर यूज होता है. इट इज अवेलेबल इन ऑल द रॉ मटेरियल शॉप. लाइक जहाँ पर केक का मटेरियल मिलता है ना, रॉ मटेरियल, वहाँ आपको मिलेगा. नहीं तो फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा. यू कैन सर्च इन द मॉल्स ऑल्सो. या ओके ओके परफेक्ट. So this is a dough wherein I have taken maida, salt and oil and water. Okay. तो ये मैंने डो बना लिया है. I have rested it for around half an hour. ओके I'll be taking dusting floor. सो शेफ जो आपने अभी समोसा बनाया, तो समोसा को भी हमें फ्रीजर में ही रखना है ना? हाँ जी. दिस इज अ फ्रोजन क्लास. तो ये फ्रीज कर सकते हैं आप. ऐसे मैं आपको सिखा रही हूँ. या आप डायरेक्टली ऐसे भी डीप फ्राई करके तुरंत भी खा सकते हो. ओके. ओके परफेक्ट परफेक्ट. सो गाइज अभी हम मोमोज का डो हम बना रहे हैं, बन चुका है. बट तो हमें इसे सर्कल ही शेप देना है? ये सर्कल इसलिए बिकॉज मैं आपको सिखा रही हूँ कि एक साथ आप छोटे छोटे सर्कल कैसे बना सकते हो. तो मैं वो आपको सिखा रही हूँ. सो आई बी मेकिंग अ बिग रोटी आउट ऑफ दिस. ओके ओके.
सो गाइज, जब तक ये शेफ हमारा ये प्रोसेस कर रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं एक्चुअली में समोसास के। मैंने जब पहली बार इसके बारे में सर्च या फिर देखा था तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो समोसा, समसा एंड सिंघाड़ा, लाइक मैम बहुत पार्टिसिपेंट्स ने बोला था कि सिंघाड़ा इज द आंसर। यस, सिंघाड़ा भी बोला जाता है, सोमसा भी बोला जाता है। तो बहुत सारे नेम्स होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक डिश के इतने सारे नाम होते हैं भाई। So now I have made this big roti. Okay, I'll cut with this small katori, or you can take any mold cookie cutter or anything. Why Okay. I'm doing this? So that after cutting with this mold, you'll get same size of momos. Right? Yeah, okay. So this is a tip to get the same size. Otherwise, what you will do, you'll be rolling one, and it will be time taking, and the size will also differ. So now this I've taken. You have to take this filling make this is a cooled filling now. It is, अगर आपको याद है तो हमने ये फिलिंग बनाई है मोमोज की। मैं ये ले रही हूँ यहाँ पर। इट इज अप टू यू नाउ, आपको ये कितना फिल करना है, आप कितना मैनेज कर सकते हो। अगेन आई विल अप्लाई वाटर ऑन द एजेस टू स्टिक द एजेस। ओके। सो Okay. गाइस, जैसे कि हमने शेफ, जैसे कि हमने समोसास का भी बनाया था प्रॉपर पूरा शेप, तो उसमें भी हमने साइड में वाटर लगाया था, राइट? जी। तो सेम वी आर डूइंग गाइस फॉर मोमोज एज वेल। हम मोमोज के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। फिलिंग डालना है। वी आर टेकिंग मैदा, दिस ड्राइज, तो वो थिक नहीं होता है प्रॉपर। तो वी हैव टू नाउ लुक द शेप हमको कैसे करना है। दे हैव डिफरेंट शेप्स इन मोमोज, so आई एम टीचिंग यू वन और टू। यू हैव टू ये प्लेट्स करनी है आपको, ऐसे प्लेट्स बनानी है, ऐसे जस्ट फोल्ड। ओके, जैसे हम लोग मोदक बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको ये ऐसे प्लेट्स बनानी है। यू कैन सी यहाँ पर मैंने सारे प्लेट्स बना लिए। ओके, एंड देन ऑन द अदर साइड ये आप पूरा प्लेटेड बनाओ, या फिर अदर साइड जस्ट इसको ऐसे चिपका दो। ओके। So this kind of shape is very famous and easy to, ये समझ में आ गया। अब ये शेप आपका कब आएगा, जब आपका डो टाइट रहेगा। अगर आपका डो पतला रहेगा तो ये गिरता जाएगा, ये शेप आपका मेंटेन नहीं होगा। तो दिस इज अ टिप। आप बोलोगे हमारे शेप्स नहीं आते हैं, तो ये ऐसा शेप तभी रहेगा जब आप आपका डो टाइट रखोगे। एग्जैक्टली। Okay, once again I'll show. Is it visible? Yeah, chef, perfectly visible. Okay. So you have to make slits. And from the other side, just okay. Yeah, wow, it's so easy. Shape Yeah, देना। it is easy. Like ऐसे कोई भी, अगर आपको और भी इसमें कोई वेरिएशन करना है तो जस्ट इसको दोनों साइड से ऐसे चिपका दो। Okay. These are also type of shapes, or you can make modak, or you can simply do any shape you like. Okay, अभी ये करने के बाद अभी मैं आपको दो ही बता रही हूँ। You can practice at home. Afterwards, I'll be doing this. तो इसको स्टीम करना है आपको 2 मिनट तक। तो हम लोग इसको, ये मैं स्टीमिंग भी बता देती हूँ, या फिर आप समझ जाओगे। 2 मिनट तक इसको स्टीम करना है। कल की क्लास में फिर से स्टीमिंग होने वाली है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रिजर्व करना ही है मोमोज, तो 2 मिनट्स तक आपको पानी लेना है, उसमें जाली रखनी है। आई शो यू दैट ऑल्सो, या फिर मैं 2 मिनट्स आई स्टीम एंड शो यू। ओके, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। Okay. So I'll take water. Just it is time consuming in the class, so bear with me.
तो शेफ समोसे को डायरेक्ट फ्रीजर में रखना है या फिर 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रखकर फिर फ्रीजर में रखना है? नहीं नहीं, नाउ उसका शेप तो जो है वो तो फर्म है, उसको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ही डिब्बे में भरकर उसको रख दो, या फिर फ्रिज में ऐसे रखकर, और फिर आपको जिपलॉक पाउच में जब करना होता है ना, तब आपको 2 घंटे बाद निकाल कर उसको, जिपलॉक में कैसे होता है, शेप ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं, तो जिपलॉक में रखने के लिए हमको उसको 2 घंटे फ्रीज करना होता है और फिर डिब्बे में भरना होता है। ओके ओके। सो जैसे कि जितने भी फ्रोजन फूड हम यहाँ पे सीख रहे हैं, और फ्रोजन फूड जो बना रहे हैं ड्यूरिंग क्लास, इमीडिएटली यूज कर सकते हैं क्या हम? Everything, every like recipe we are making, you can use it immediately. No problem in that. Okay. ओके। ऑल्सो अ रिक्वेस्ट शेफ, जस्ट अ रिक्वेस्ट, आपने जो शेप बनाया है ना मोमोज का, आप थोड़ा सा कैमरा के पास आके आप दिखा सकते हो क्या स्लाइडली? Okay, I'll show you one more. मेरा पानी गर्म हो ही रहा है, तब तक मैं और भी दिखा देती हूँ। तो टाइम थोड़ा लेट हो जाएगा, तो चला लेंगे हम लोग। ओके ओके। तो थोड़ा जूम कर। So you can see I'm applying water. ओके। In Maharashtra, if anybody is from Maharashtra, you get Gugra or Karanji mold also. You can make momos in that also. Okay, I have stuffed this. Now what you want, I have to do, I have wet the edges. Okay, ये प्लीट बनाइए ऐसे, 1 plate, 2, just keep on folding the edges. Got it? Yeah, perfect. Okay, this, okay, ये हाफ कवर हो गया, फिर जस्ट इसको ऐसे इसके ऊपर चिपका दो, पीछे वाला हिस्सा। Okay, got it? Yeah, now perfect. Yeah, we got it. So this is one kind. अगर आपको ये ऐसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे यहाँ से पीछे ऐसे कर दो, तो ये स्टिक होता नहीं है, तो थोड़ा सा पानी लगा देना है और ऐसे इसको स्टिक कर देना है, तो ऐसे भी हो सकता है। So these are 2 to 3 types you can make. Okay. So now what you have to do? I have taken water over here in a pan. Okay. I have taken water. We are preparing a steamer over here. So this ring we have to place, this kind of ring. We have to take this kind of vessel from which steam can be done. Okay. Oh. तो जाली लेनी है, आपके पास स्टीमर होगा, आपके पास इडली मेकर होगा, तो उसमें भी हो सकता है। Exactly. बट ये मेथड सबसे अच्छी है, इसमें ज्यादा आप रख सकते हो, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल से मैं ग्रीसिंग करूंगी। ओके, नाउ माय वाटर हैज स्टार्टेड बॉइलिंग, तो यहाँ पर मैं ये रखूंगी, और जैसे ही पूरा बॉईल होने लगे, मैं मेरे मोमोज उसके ऊपर रखूंगी। ओके, सो गाइस हमें इसे बॉईल होने तक का इंतजार करना है, उसके बाद जो भी मोमोज हमने बनाया है उसे हम इसमें रखेंगे अभी। ओके, नाउ माय वाटर हैज स्टार्टेड बॉइलिंग, मैं इस पे ये मोमोज रखूंगी जस्ट फॉर 2 मिनट्स। टाइमर लगाना है, 2 मिनट्स तक आपको हाई फ्लेम में इसको स्टीम करना है अच्छी तरह से। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो स्टीम है ये बाहर ना जाए, ये अंदर ही रहे। ओके, so I will be steaming for 2 minutes. I'll remove them, I will cool them, and then I'll fill in a dabba and keep in a deep freezer. Okay. Yeah. And after freezing, if you want to serve, उसको निकालिए और steam again for 10 minutes at least, and then you can serve hot with chutney, momo chutney. So this process we will be doing this process tomorrow also.
Okay, thank you chef for showing this and sharing the same with us. So guys, अभी हम यहाँ पे 2 मिनट्स के लिए रखेंगे, बस आपको टाइमर लगा के परफेक्टली देखना है. उसके बाद आप इसे स्टोर करके इन योर बॉक्स आप डीप फ्रीजर में रख सकते हो, डीप फ्रीज के लिए रख सकते हो. उसके बाद आपको जब भी सर्व करना हो तब आप फ्रीजर से निकाल के 10 मिनट्स के लिए, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फ्रीजर से पहले हमने 2 मिनट के लिए रखा है, जब फ्रीजर से निकालेंगे हम सर्व करने के लिए तब हम 10 मिनट्स के लिए रखेंगे स्टीम में, राइट शेफ? यस, बिकॉज दे आर कूल चिल्ड वन, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. 10 मिनट तो उसको स्टीम होकर हॉट होने के लिए लग जाएगा. Okay. And yeah, one more thing, chef. Is it Yes. compulsory to steam the momos before preserving it? यस, ये आपको जैसे मैंने बोला कि हर एक चीज आपको प्रिजर्व करनी है, तो यू हैव टू स्टीम फॉर 2 मिनट्स, हाफ कुक एंड देन प्रिजर्व, तो उससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है. तो दिस इज वेज डो, वी हैव टू स्टीम फॉर 2 मिनट्स एंड देन कीप इट सो दैट बैक्टीरिया एंड ऑल दे गेट लाइक पूरे बैक्टीरिया चले जाएंगे, डिबैक्ट हो जाएगा ये, एंड देन प्रिजर्व दैट. ओके. ओके. सो टिल द टाइम शेफ ये अभी थोड़ा बहुत स्टीम हो रहा है 2 मिनट्स के लिए, तो हम फ्रोजन मोमोज के भी रिप्लेसमेंट, जैसे कि हमने तीनों डिशेस के अपने रिप्लेसमेंट्स डिस्कस किए हैं, तो मोमोज का भी वी कैन डिस्कस, राइट? यस. Okay. So like chopped capsicum, cabbage chopped carrot, crushed paneer, green chilies, इसका कोई replacement? यू कैन रिप्लेस एनीथिंग, तो कुछ नहीं, लेकिन आपके पास अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप कर दो. जैसे पनीर, आई हैव नॉट एडेड पनीर इन दिस, मैंने स्किप कर दिया. आई हैव फ्रेंच बीन्स नहीं है आपकी, तो कैरेट बढ़ा दीजिए. क्वांटिटी जो कम कर रहे हैं, जो स्किप कर रहे हैं, तो अदर वेजिटेबल्स जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो. जस्ट Okay. Then what about soya sauce and all that, maida, salt? Yeah, I told you, soya sauce you can skip it. बाहर जो मोमोज मिलते हैं, which we eat on the street, they don't add soya sauce. But this is my recipe, wherein I prefer to make it more tastier. So I add soya sauce. आप सोया सॉस के बगैर बनाइए और सोया सॉस डालकर बनाइए, दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, और इट इज नॉट अवेलेबल तो आप वैसे ही बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so if we are having freshly made momos, then how much to steam? Well, like preserving, अगर हमें frozen shape नहीं देना है उसे, तो कितने minutes के लिए steam करना होगा? Usually, if directly you are making, then 8 to 10 minutes you steam and then serve hot. Okay, perfect. Okay, now 2 minutes are over. I'll take them out. Yeah, sure. So we'll take them out. They are hot. Okay, so we will be taking them out. We will be cooling them on room temperature, and then I'll pack them in Ziploc package or else in a airtight container. Okay, so I'm keeping this for cooling. Okay, sure, chef, sure. Now we will move ahead for the veggies recipe. Okay, the potato veggies. So now we have to coat our potato veggies with a masala or a powder. Okay, so what you will be doing, we will be mixing some powder over here. Okay, so here I have taken maida, oregano, garlic powder. This is very flavorful masala which we will be coating on our veggies. Red chili flakes, mixed herb, red chili powder. Okay. And the seasoning cube, Maggi seasoning cube. Okay. And I will be also adding red food color. I'll be showing you which food color I'm using. Okay, so chef, just wanted to ask one thing. Like in PDF, you have mentioned magic cube 1 for 500 gram, but yes, for half quantity, you are using 1 cube. Yes, that is because I like the flavor of magic cube, so I don't like compromise in that. Okay.
ओके, तो मैंने सॉल्ट तो जरा भी किसी में डाला नहीं है, मैंने स्किप ही किया, आपने देखा होगा। तो दिस इज ऑरेंज रेड कलर, बुश कंपनी का ऑरेंज रेड कलर है, दिस इज एडिबल। आई विल बी एडिंग दिस अ पिंच ऑफ ऑरेंज रेड कलर, okay, and we'll mix all these things with a spoon properly. ओके ओके, एंड जैसे कि शेफ मोमोज को स्टीम करते हैं इवन फॉर 2 मिनट्स, कलर चेंज होगा ना, सो इट्स लाइक मैदा होता है, सो देन अगेन स्टीमिंग फॉर 10 मिनट्स, जब हम निकालेंगे फ्रीजर से तो इट विल बी सॉफ्ट, राइट? सॉफ्ट नहीं होगा क्या? तो मोमोज तो सॉफ्ट ही होते हैं ना, सॉफ्ट, ओके ओके, दे सो आर अगर नॉट ज्यादा, क्रिस्पी, या राइट, सॉफ्ट ही होते हैं बिकॉज द कवरिंग शुड बी कुक्ड प्रॉपरली। आपको 10 मिनट्स तक उसको स्टीम करना ही है। ओके, सो नाउ ओके ओके, आई एम, ये हमारे वेजेस जो है ये आ गए हैं ड्राई होकर। आपको चेक करना है, दे शुड बी ड्राई, दे शुड नॉट बी वेट, चेक विथ योर हैंड्स प्रॉपरली, कहीं से भी वेट मॉइस्चर नहीं लग रहा है। ओके, ओके ओके, so this I'll be taking in my bowl. ओके, तो अभी ये कोटिंग जो है ये इसके ऊपर लगानी है, तो डायरेक्टली तो लगेगी नहीं, ये कोट नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, राइट? और हमको पानी भी यूज नहीं करना है क्योंकि हमको फ्रोजन करना है, राइट? तो हमको क्या करना है, वी विल बी एडिंग वाटर, सॉरी, ऑयल इन दिस। ओके ओके, ऑयल से हम चिपकाएंगे, जो पाउडर है उसकी कोटिंग ऑयल से इसको स्टिक करेंगे, मीन्स ऑयल से वो कोटिंग स्टिक होगी। वी विल बी स्टिकिंग द कोटिंग विथ यूजिंग ऑयल, 1 tablespoon, 2 tablespoon. Okay, ओके, so coat oil properly on this wedges, and then add all this masala powder. ओके ओके, So सो what शेफ will हमने happen, ऑयल, या what will happen, this oil and masala, they'll stick together on the wedges properly, they will एग्जैक्टली, coat या the wedges. एग्जैक्टली, They are very flavorful and they are very yummy. Actually french fries से ज्यादा मुझे wedges अच्छे। ओके ओके, सो गाइज So you आप can हमें see, बता सकते हो, या वी कैन सी इट, आप भी हमें चैट बॉक्स या ग्रुप में बता सकते हो कि आपको फ्रेंच फ्राइज और वेजेस में से सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है। यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, व्हाट विल यू चूज, लाइक फ्रेंच फ्राइज और वेजेस? so this is a tray wherein ओके बटर पेपर मैंने लगा लिया है, और ये वेजेस हम लोग रखेंगे इस पर, एंड विल डीप फ्रीज फॉर 2 hours and then fill in Ziploc packets. ओके ओके And tomorrow we'll be frying all this thing. ओके, If you want to deep freeze for more long period, if you want to preserve for long period, आपको क्या करना है, 2 घंटे बाद इसको निकालना है, हाफ डन करना है, हाफ फ्राई करना है, और फिर से कूल करके उसको डीप फ्रीज करना है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, बट फॉर यूजिंग फॉर होम पर्पस, आपको घर के लिए करना है तो 1 or 2 months के लिए ये आराम से ऐसे ही रख दो डीप फ्रीज करके, तो रह जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके ओके, So this is over with our class, today's class. So you can take the quiz. या श्योर। सो गाइज आज की चीजों में जो भी हमने सीखा, लाइक हमने अभी तक फ्रोजन पनीर चीज मिनी समोसा बनाना सीखा, हमने उसे फ्रीजर के अंदर रख दिया है, बर्गर पैटी बनाना सीखा, पोटैटो वेजेस अभी अभी जस्ट हमारी शेफ ने हमें सिखाया, एंड फ्रोजन मोमोज भी सिखाया अभी शेफ। सो हमने सब कुछ डीप फ्रीज के लिए रख दिया है। सो guys, now I'll be enabling the chat box. मैं यहाँ पे chat box enable करूंगी, so you can ask your queries and questions from our chef. अब आप अपनी queries and questions directly पूछ सकते हो। So yeah, so guys, These are chat momos. This I'll also be keeping in freezer. yeah.
Okay, okay. So, chef, shall we take some queries and questions? Yeah, sure. Okay, okay. So, ma'am, oil using in making dough for samosa and momos is normal or hot oil? In samosas, for getting more crispier flavor or taste, texture, you can add hot oil in samosas. Because we are using suji, तो hot oil use हो सकता है समोसा में, but in momos आपको normal oil ही use करना है. Okay, हॉट okay. ऑयल दोनों में भी नॉर्मल ऑयल यूज हो सकता है, बट इन समोसा यू कैन ऐड हॉट ऑयल, तो उससे ज्यादा क्रिस्पी होगी. Okay, okay. So guys, just a reminder, अभी I guess 4:54 हो गए हैं. So guys, I'm just opening the chat box for 2 minutes only. 2 minutes के लिए chat box open है, so you can ask your queries and questions. Okay, moving forward. Ritu ma'am is saying, please show us the fine vegetable chopping as there was no Okay. time yesterday. yes. Sure. Okay, okay, ma'am. अभी बस हम आपको दिखा रहे हैं. So Getting some vegetables. A carrot. So this is my chopper. It is very easily available in all the shops or online. This is vegetable chopper. ये मेरा विंडो शेफ का है, आप कोई भी ले सकते हो. okay, okay. तो इसमें मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कैसे करना है, एंड इट इज वेरी इजी और हर घर में होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई इंसिस्टेड यस्टरडे कि हाउ टू चॉप आई विल बी टीचिंग यू. ओके, दिस इज कैरेट. ये बंद कर लिया हमने. ओके, एंड सो यू कैन सी ये ऐसे चॉपिंग होती है इसमें. अभी ये क्वांटिटी कम है, इसीलिए इट टेक्स टाइम. सी हाउ फाइन इट इज इन चॉपिंग. और इससे मॉइस्चर या पानी भी नहीं छूटता है. सो इट इज वेरी गुड फॉर होम यूज, या सब लोग ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा. ठीक है. या ओके ओके शेफ. एक्चुअली में बहुत यूजफुल लग रहा है ना रितु मैम? बहुत ही ऑनियंस भी बहुत अच्छे इसमें फाइनली चॉप होते हैं और पानी भी नहीं छूटता है. ये इसका मेन क्वालिटी है. तो कोई भी कंपनी का आप लीजिए, पिजन का या एनी कंपनी, ऑल आर गुड. मैंने सब सारे यूज किए हैं. ये मेरा विंडो शेफ का है. Okay, okay. Thank you so much, Suchitra, for showing us this. Okay, moving forward with the queries. पैटी को क्या सिर्फ 1 टाइम स्लरी एंड ब्रेड क्रम से कोट करना है और 2 टाइम्स बिफोर फ्रीजिंग? नहीं, हाँ, पैटी को एक टाइम करो. अगर आपको चाहिए कि ज्यादा क्रिस्पियर पैटी चाहिए तो आप डबल टाइम कोट करो. बहुत ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो ही डबल बार कोट करो, नहीं तो फिर सिंगल टाइम. Okay, okay, perfect. दैट इज अप टू यू. Okay, so ma'am, you said deep freeze for 2 hours and then ziplock freezer में 2 hours रखना है या फ्रिज में? कंफ्यूजन है थोड़ी इससे रिलेटेड. जिपलॉक में रखना है. क्या होता है, 2 आवर्स हम लोग डीप फ्रीज में रखेंगे ना तो वो हार्ड ड्रॉप हो जाता है, आइस जैसे हो जाता है. फिर आप जिपलॉक में भरोगे ना तो टूटेगा नहीं, या सिर्फ स्मैश नहीं होगा. इसीलिए 2 घंटे के बाद आपको जिपलॉक करना है. मैं इसीलिए बोल रही हूँ पहले 2 घंटे रखो, फिर जिपलॉक में निकाल कर जिपलॉक कीजिए. और फिर से फ्रीजर में ही रखना है. ये आपको फ्रीजर में ही रखने हैं सारी चीजें, -15 to 18 डिग्री के बीच में. Okay, okay, perfect. So yeah, okay, there's a demand as well. Ma'am, what about the momos chutney and sauce? ओके, मैं ना लिखकर आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में मोमोज की चटनी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो. मैंने सेशन में इतना टाइम नहीं होता है तो मैंने बनाकर रख दी थी. मुझे लगा आज ही शो करना है, लेकिन आज शो नहीं करना है तो कल शो करना है. तो मैं सिर्फ इजी है, मैं रेसिपी डाल दूंगी ग्रुप पर. Sure, chef. Sure. Thank you so much. So, yeah. So, the question is, what are the contents of mixed herbs? Mixed herbs, I'll show you. Okay, okay. I'll read and show you. See, oregano, thyme, basil, parsley, and rosemary. Okay, okay. Oregano. Thyme, basil, parsley, and rosemary. Okay, thank you, chef. Thank you so much. Okay.
So how to deep freeze burger tikki? दैट ओनली आई एम सेइंग कि आप लोग पहले 2 आवर्स के लिए डीप फ्रीज कीजिए ट्रे के ऊपर, निकालिए एंड देन फिल इन जिपलॉक पैकेट और ऐसा प्लेस कीजिए फ्लैट इन द फ्रीजर एक के ऊपर एक, या फिर आप टेक अ कंटेनर लाइक दिस, आई शो यू दैट ऑल्सो. दिस टाइप ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स यू गेट, आप इसमें भी डीप फ्रीज करके रख सकते हो निकाल कर. अगर आपको इसके ऊपर लेयर करने हैं तो बीच में बटर पेपर का लेयर लगाइए, फिर टिक्कीज रखिए, फिर लेयर बटर पेपर, फिर टिक्कीज, ऐसे करके आप प्रिजर्व कर सकते हो. Okay, okay. Yeah, thank you so much. Okay, Manisha ma'am is saying if we want to deep fry, so what should we do? Then also we have to steam. मोमोज आर नेवर डीप फ्राइड, आई थिंक दे आर ऑलवेज स्टीम. बट अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप ये डायरेक्टली यू कैन डीप फ्राई. Okay, okay. So ma'am, momos को freeze कैसे करना है? Please tell. जी, मैंने जैसे बताया, हमने ये मोमोज बनाकर ये 2 मिनट्स के लिए स्टीम कर लिए थे, राइट. 2 मिनट्स के बाद अभी ये ठंडे हो गए हैं, रूम टेम्परेचर पे आ गए. अभी इसको मैं ट्रे में रखकर डीप फ्रीज करूंगी. 2 घंटे बाद जब ये हार्ड हो जाएंगे आइस जैसे, इसको आराम से जिपलॉक पैकेट में भर के मैं रख दूंगी, तो इसका शेप भी खराब नहीं होगा क्योंकि वो आइस जैसे हो गया है. या फिर आपका जिपलॉक पैकेट नहीं है तो एयरटाइट बॉक्स में आप रख सकते हो आराम से प्रिजर्व करके. Okay, okay. Sure, sure, sure. So yeah, can we bake samosas and how? Samosas are not baked, they can air fried. Okay, air fry कर सकते हैं. Yeah, Yes. yeah, yeah. So Sanjana ma'am is saying, can we coat French fries also like wedges for spicy taste in it? Yeah, you can. Yes. Okay, okay. So corn flour was added in masala of wedges? Yes, कॉर्नफ्लोर के साथ ही मसाला को मिक्स किया है और कोट किया है. कॉर्नफ्लोर नहीं, सॉरी, मैदा लिया था, नॉट कॉर्नफ्लोर. Okay, okay. So can you cut the potatoes for potatoes fry? लाइक पोटैटो फ्राइज के लिए Yeah, yeah, potato fry. ओके, गेट मी वन पोटैटो फ्रॉम आउटसाइड. Okay, Okay, I'll okay. show you. Okay. Yeah, thank you so much, chef. Thank you. So guys, we'll be taking all your queries. Abhi, we'll be showing the procedure. So chef, can we like feel chicken mince or prawns also? Can we freeze this? Actually, I'm pure veg and our class is also veg. I have no idea of non-vegetarian dishes. I'm very sorry for that. But Okay. yes, you can freeze. जैसे हम लोगों को frozen foods ये कभी खराब नहीं होते. Just half cook and freeze them and eat immediately after you remove. इसका एक फंडा है, आप याद रखिए. कोई भी चीज आप, कोई भी दुनिया की चीज आप डीप फ्रीज कर सकते हो, फ्रोजन कर सकते हो, ठीक है. जस्ट आपको क्या करना है, आपको उसको निकालना है और तुरंत ही हॉट ऑयल में डालना है, सो दैट उसका जो है उसका शेल्फ लाइफ, मतलब उसको शॉक ट्रीटमेंट लगे और उसकी बैक्टीरिया जो है वो आए नहीं, ठीक है. आप बहुत देर तक बाहर पड़े रहेगा तो बैक्टीरिया कैच करेंगे, इसीलिए निकालना है और सीधे हॉट ऑयल में डालना है. ये एक है रूल इसका, ठीक है. तो ये याद रखने वाली बात है, तो इसीलिए आप नॉनवेज भी शायद कर ही पाओगे. Okay, okay. So I'm cutting this French fries now. मैंने ये पील नहीं किया है, आई एम शोइंग इट डायरेक्टली. डू यू वांट टू पील? नहीं तो पब्लिक को लगेगा कि पील ही नहीं करना है, तो आई पील देम. Okay. And Jessica ma'am is asking, can we fry potatoes, veggies without freezing? Yes ma'am, जैसे कि हमारे शेफ ने अभी कहा भी, जितने भी frozen foods अभी तक हमको सिखाए गए हैं, we can do it. Deep freeze से पहले भी हम, if you want to have it immediately, you can just have it without deep freezing it. आप उसको fry कर सकते हो. You have to deep freeze for 2 hours just to maintain the shape and the texture
द कोटिंग अच्छे तरह से सेट होती है. जस्ट फ्रीज फॉर एटलीस्ट 2 hours. Okay, 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 perfect. And chef, why don't we use vinegar in veggies? Because we are coating so much masala in that, there is no need of that taste of vinegar. French Okay, fries are okay, plain. So this is okay. a potato I have taken. You can see. इससे भी बड़े मिलते हैं. Yesterday I had used more bigger one. What I'll do, I'll remove the back part. I'll make it plain from the side, from the upper sides also. थोड़ा ये oval जो shape है वो निकाल देंगे ताकि वो अच्छे तरह से बैठ सके. Okay? Give it a chopper. Okay, I'll do it. Okay, ये अभी बैठ रहा है. ठीक है? फिर आपको क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे कट करना है. Can you see? Horizontally Yeah. I am cutting this. Okay, 3 portions I have made. अगर आपका ज्यादा फैट आलू है, मोटा है, तो आप इसका 4 भी कर सकते हो. Okay, after that from side 1, 2 and again 3. So you get this kind of ये fingers आपको मिलते हैं. And don't make it very thin. क्रिस्पी और सॉफ्टनेस अगर चाहिए तो इतने मोटे आपको रखने ही पड़ेंगे. 1/2 inch thick. Okay? Yeah, perfect, chef, perfect. So going forward with the queries, chilled water means ice chilled water for dipping French fries and veggies. Yes, ice chilled water. Okay, okay. So cornflakes should be fried or raw flakes for coating the tikkis? Raw flakes, I'll show you that also. Yesterday the queries was to show the cornflakes. I'll show you what kind of cornflakes I'm using. First I'll keep this aside. Okay. So guys, we are showing you the So chef, there's a question from Kiran ma'am. Ma'am, Amul cheese cube will also melt in samosa? Yes, but it will not melt that way. Like mozzarella जैसे इतना melt नहीं होता है और तुरंत ही melt नहीं होता है. Okay. So this is the cornflakes, raw cornflakes which I have taken for powder. Yeah, okay, okay. Okay? Yeah, thank you chef, thank you so much. Yeah. Okay. So ma'am, garlic powder नहीं है तो क्या use करें? Garlic paste. गार्लिक पेस्ट. या गाइस, हमने रिप्लेसमेंट में भी जब क्वेरीज ले रहे थे तब भी बात की थी. गार्लिक पाउडर की जगह आप गार्लिक पेस्ट कर सकते हो. सो ओके, सो क्या स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज भी ऐसे ही बनाते हैं हम? Yes. You can make this with sweet potato. You can make this with suran या elephant leg जो भी उसका नाम है, उससे भी बना सकते हो. Okay, okay. So can cooked in cooker? Asha ma'am is asking. What? Can momos be cooked in cooker? Yes. But whistle नहीं लगानी है, just उसको steam करना है उसमें. Yeah, you don't exactly. have to use whistle. Yeah. Okay. So ma'am, फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के बाद अगर सीजनिंग करना है तो क्या डालना चाहिए? सॉल्ट और क्या? Black pepper powder you can put chaat masala, you can add red chili powder, and number of things you can put, anything you like. Okay. So Rashmi ma'am is asking, ma'am, frozen किया हुआ any item deep fry करने के लिए कितना टाइम पहले बाहर निकाल के रखना चाहिए? No, that is the key. I am telling you बार कि आपको निकालना है और तुरंत ही डालना है hot oil में. You don't have to keep outside. Okay. So how to make garlic powder at home? Just sun dry garlic. एंड अभी बहुत अच्छा सीजन है, सन इज देयर. यू सन ड्राई, चॉप करके, ज्यादा बड़ा है तो चॉप कीजिए उसको, कपड़े पर फैला दीजिए, सन में रखिए, धूप में रखिए अच्छी तरह, जब तक ड्राई ना हो जाए. 2-3 दिन में अच्छे तरह से सूख जाएगा और फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए. बट फ्रैंकली स्पीकिंग घर पे अच्छा नहीं होता है, बिकॉज बाहर का डिहाइड्रेटेड होता है, मशीन में सुखाया जाता है, तो बहुत अच्छा मिलता है एंड इट इज वेरी चीप. यू कैन
easily take from outside. ओके ओके सो गाइज 5-8 हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से हम फ्यू मोर क्वेरीज 2 से 3 या 5 तक क्वेरीज लेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया है. सो तृप्ति मैम इज आस्किंग इन बर्गर पैटी 4 tablespoon bread crumbs written. So how Yeah. much we have to put in dough and while rolling? डो में पूरा ही डालना है 4 tablespoon और पूरा जो दिया है वो, और जो कोटिंग के लिए है वो आप एक्स्ट्रा लीजिए. ओके, कोटिंग के लिए मेजरमेंट इसीलिए नहीं दिया है बिकॉज वी डोंट नो इफ यू आर कोटिंग ट्वाइस और थ्राइस समटाइम्स, तो आप आपके हिसाब से कोट कर सकते हो. मैंने अभी एक ही बार किया है, तो इफ यू वांट मोर क्रिस्पी बर्गर पैटी आप 2 बार कोट कीजिए. ओके सो स्वाति मैम का एक कंफ्यूजन है, तो जल्दी जल्दी से हम क्लियर कर लेते हैं भाई. आफ्टर डूइंग ऑल द रेसिपीज एक्सेप्ट समोसा and momos should keep in freezer in a plate for 2 hours, then we need Yes. to ziplock and freeze it. Am I correct? She is asking. इट इज फॉर एवरी रेसिपी, सब फ्रोजन फूड के लिए सेम है procedure. Okay, okay. So I have already this chopper very useful. Yes, Pooja ma'am, it is absolutely very useful. जो भी हमारे शेफ ने अभी दिखाया हमें actually में बहुत useful है. So can we take cabbage and momos? Yes, we can. Right? Yes, कैबेज तो मस्ट होती है चाइनीज के लिए. कैबेज ज्यादा दिया है मैंने. इफ यू कैन सी आई हैव केप्ट मोर कैबेज एंड लेस रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर लेस. Okay, okay. So can we okay, मैम मार्केट में जो मोमोज आते हैं उसकी कवरिंग ट्रांसपेरेंट होती है, वो कैसे? ये स्टीम करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो ही जाएगी, और आपको और भी ट्रांसपेरेंट चाहिए तो थिन चपाती बेलना उसकी. Okay, okay. And can we fry these momos to make it fried momos as well? Yeah, if see this is up to you. आपको स्टीम करना है, फ्राई करना है, आपको तंदूर करना है, that is again innovations आप जो भी करना चाहो. Okay, okay. So guys, we have taken most of the queries. Chat box में जब मैंने enable किया था 2 minutes के लिए, so we have taken almost all the queries, and it is 5:11 right now. So I'll be closing the session and I'll be saying something. Guys, never heard like हमने आज समोसा बनाना सीखा, right, chef? So never, please guys, listen it really very carefully. Never heard a samosa or vada or kachori. Why? I'm just telling you why. By saying no, they do have fillings, यार. किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला? They do have fillings, यार. Okay, that होती है में. राइट राइट, ये स्टफिंग नहीं, हम अभी फिलिंग बोलेंगे. हेलो, you're not audible. Yes, Suchita, you're audible. So sorry, my anchor lost the audio. Okay, no problem. So shall we leave the meeting now? Yeah, are we done with the session? Yeah, we have done with the session. Okay, so it's okay. Yeah, fine. We are done with the session. We can leave. Thank you so much, Suchita. It was a Okay. nice session. Thank you, Sachin. Yeah, Bye. thank you guys. Please Thank you all. Bye. मिलते हैं सब मिलेंगे. AMF पे 5:30 to 6:30 for 1 and 2 group, and 6:30 to 7:30 for 3rd and 4th group. Okay, we'll meet there. Bye. Sure. Thank you so much. Thank you so much, guys, for attending our session. Keep loving, keep supporting. We'll meet tomorrow, same time. Have a nice day. Bye bye.